پہلگام حملس حوالہ جموں کشمیر اسمبلی مز قرارداد منظور عادل حسین شاہ تو باقی سیاحن خراج عقیدت پیش جموں کشمیر نیبر قشر طالب علمن ہز حفاظت یقینی بنانس پہ زور ہمسائے ملک طرف آو انسانیت قتل کرنا بھارتس پز پاکستانس قرار جواب دیون جموں کشمیر اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارس پوچھر دنچ ضرورت ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان پہلگام حملہ پت جموں کشمیر اندر سیاحت بحال سیاحتی مقاماتن پہ غیر مقامی سیاحن ہند رش سیاحن پز کشمیر ہند سٲل کرن بالی ووڈ اداکار اتل کلکرنی سن بیان السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صدر تو سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف شاہ جمعس اندر ذرائع ابلاغ کیا نمائندن ست کت کران ون آمت یہ تم پرت وز بھارت تو پاکستانس درمیان کت بات ہز وکالت کران تاہم پہلگام واقع پیش ین پتہ تمو پنس موقفس مز تبدیلی ان تو بھارتس پز پاکستانس قرار جواب دیون تمو ون ہمسائے ملک طرف انسانیت قتل کرنا آمت تو یہ کن تہ صورتس مز برداشت کرنا ڈاکٹر فاروق عبداللہ ون جموں کشمیر اندر ہندو مسلم بھائی چارس پوچھر دنچ ضرورت وہ زبردست افسوس ہے ہمیں کہ ہمارا پڑوسی آج بھی نہیں سمجھتا کہ اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس سے ہم لوگ پاکستان میں چلے جائیں گے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ہم جب 47 میں ان کے ساتھ نہیں گئے آج کیوں جائیں گے؟ ہم نے 2 نیشن تھیوری تب پانی میں پھینک دی تھی اور ہم 2 نیشن تھیوری کو آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو بھی ہیں ہم سب ایک ہیں. پیدا کرنے والا وہ ہے جس نام سے آپ چاہتے ہیں اس کا نام لے لیجیے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اس سے کمزور کر دیں گے ہم اس سے کمزور نہیں ہم اس سے مضبوط ہو رہے ہیں اور ان کو اچھا جواب دیں گے. سنیے میں آپ سے کہتا ہوں میں ہر وقت ڈائیلاگ کا فیور کرتا تھا. میں ہر وقت چاہتا تھا کہ بات چیت ہو مگر بتائیے ان لاشوں کے کو کیا کہیں گے اور ان کے گھر والوں کیا کہیں گے کہ ہم بات کریں گے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ آج بھارت چاہتا ہے وہ نہیں بالا کوٹ نہیں آج بھارت چاہتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ اس کے بعد کبھی ایسی چیز نہ ہو. ہم لوگوں میں ہر وقت بھائی چارے کو پکڑا ہے اور آج بھی اس کا ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا ہے. سابق مرکزی وزیر تو کانگریس پارٹی سینئر لیڈر سیف الدین سوزن پہلگام واقعس حوالہ کت کران پاکستان طرف ونش ات واقعس مز پاکستان کھانا تہ ات تیل پز تمن ام حوالہ ہندوستانس بروس دنس مز پہل کریں یت زن کت بات باپت وت ہموار سپدے یل زن تمو ون پرت کھانا مسلہ کت بات ہند ذریعہ حل سپدان. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پہلگام کے سانحے میں شریک نہیں ہے اس تشدد میں ان کا ہاتھ نہیں ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کو کنونس کرے. وہ راستے کھلے ہیں ڈائلاگ اور ڈسکشن کے راستے ابھی ہائی کمیشن کے ذریعے بھی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہم کو یونائٹڈ نیشنز ہیں اقوام متحدہ ہے سیکورٹی کونسل ہے اور ہندوستان کے بہت سارے دوست ہیں ان کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنا موقف ہندوستان کو سمجھائے اور اس میں اگر پاکستان کامیاب ہوتا ہے اس میں کہ ہندوستان کو بتائے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر بات چیت کا راستہ کھل سکتا ہے اور بات چیت ہی ہر چیز کا علاج ہے. پاکستان پہلگام حملس حوالہ آج جموں کشمیر اسمبلی مز قرارداد منظور کرنا آمز. یا دوران
मार्स पदमें लुकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज अकीदत पेश करनस अलाव लुकन हंदिस मामलस खिलाफ एक जबान सपदनस पे इत्मीनानुक इजहार करनाव इल्जन वाक पेश यन पत पौध सपद में सूरताल सवाल तशवीशुक इजहार करान सरकारस मंग करना आय हालात पुर अमन बाबत तो भाईचार कायम करने बाबत गसन संजीद इकदाम तुलने यन युत जन जम्मू कश्मीर इंदस रिवायती भाईचारस जख वातन सत सत सयाहतस पे बुर असर पे। जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं, नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूं कि अब मुझे स्टेटहुड दो। मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई वक्फ पत खबरनामस मज तुहद दोबारा खैर मकदम। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी तो चीफ तर्जुमान ब्रिज मोहन श्रीवास्तव सिंध तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान पहलगाम हमलच मजम्मत करना आमज। तिमो तिमन मकामी लुकन हंद शुक्रिया अदा कोर्मुत यमो पन जू खतरस मज त्रित सयाह बचावनच कोशिश कर। तिमो वोन जे पहलगाम हमलच प्रत तरफ मजम्मत कर तो यह हमला अंजाम दिन वालन गस सख्त खुद सख्त सजा युन दिन युत दोबार यिथ वाक यन पेश। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उन लोगों का संदेश लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि अभी जो पुलगांव में जो घटना घटी है, पहलगांव में जो घटना घटी है, उस घटना ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी और उस बात को लेकर हमारी पार्टी में भी बहुत चर्चा हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे कुछ पर्यटक भी उस दिन वहाँ पर थे, जिनको जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर से क्षेत्र के जो लोग हैं,
उन्होंने अपने घर पे उनको पनाह दी, उनका ध्यान रखा और उनको अपने साथ रखा। तो यहाँ हम लोगों ने तय किया था कि मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से श्रीनगर पहुँचूँगा और कोशिश ये भी करूँगा कि जहाँ पर ये घटना घटी है मैं वहाँ तक जाऊँ और वहाँ पर भी हम उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, और ख़ास तौर से उस एरिया के लोगों को और कश्मीर के उन लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद दे सकूं जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा दी और उनको अपने घर में पनाह दी। पहलगाम हमला पत् जम्मू कश्मीर अंदर सयाहत बे बहाल हिस्म सपदन। शहर श्रीनगर कन मुख्तलिफ सयाहती मकामातन पे सयाहन हुंद रश वुचन यवान। सयाहो खुशी बयान वोनमुत जे तिम कश्मीरियत वारिया सुकून महसूस करान। तिमो कशर लुकन हंज मेहमान नवाजी हंज तारीफ करान वोनमुत जे कशर लुक सयाहन हुंद खास ख्याल थावान। तिमो वोन जे सयाहती मकामातन पे सिक्योरिटी हंद खास इंतजाम करने आमद तो सयाहन पज कश्मीर हुंद सैल करन। ये कश्मीर में इस वक्त जी हाँ लगातार आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो है वो कश्मीर की सैर कर रहा है और अभी डिफरेंट गार्डन्स के साथ साथ जी हाँ लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत अलग अलग शहरों से आए हैं। सर नमस्कार, अभी आप देखिए इनसे थोड़ा बात। हेलो हेलो सर, बोलिए। हाँ बोलिए। कहाँ से आए सर आप? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह घूम रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम भी अच्छा है। पूरी फैमिली आई है? पूरी फैमिली। कितने दिनों का टूर है आपका? टोटल 7 डेज का टूर है। कब आए कश्मीर? 22 को आए हम। क्या क्या देखा सर आपने? गुलमर्ग देखा, सोनमर्ग देखा, अभी लोकल ये देख रहे हैं, वैष्णव देवी भी टेम्पल भी देखा, इधर शंकराचार्य टेम्पल भी देखा। यहाँ के लोग अच्छे लगे आपको? लोग अच्छे लगे, कोई इशू नहीं। कुछ अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ अभी तो फिलहाल तक तो अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। यस। कश्मीर कब से सोच रहे थे जाएंगे? नहीं हम तो ये लास्ट 1 महीने में प्रोग्राम किया था और प्रोग्राम टिकट बुक हुआ और चले आए। बच्चे लोग खुश हैं? खुश है, खुश सब है, enjoy सब एंजॉय यहाँ कर। पर आप देख सकते हैं, इनसे भी बात करेंगे। हेलो सर, बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम जय पटेल है। आप आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं कश्मीर में, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने कश्मीर में? गुलमर्ग देखा है। ओके। बहुत आगे आगे बहुत चीज देखना बाकी है अभी, और देखेंगे हम। तो यहाँ पे लोग अच्छे बहुत है। लोग अच्छे हाँ, लगे और आर्मी का भी बहुत सपोर्ट है यहाँ पे। जब से आए हैं कह सकते हैं कि खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। जब दोस्तों के पास वापस जाएंगे उधर? बड़े प्यारे प्यारे लोग कश्मीर में घूम रहे हैं। आप देखिए अभी मैं देख रहा था चोरी चोरी ये फोटोग्राफी कर रहे थे। इनको मतलब फोटोग्राफी पसंद है। हेलो सर। यस हेलो। हेलो मैम। हाय। कहाँ से आए सर? झांसी यूपी। झांसी यूपी? जी जी। दीदी आपसे बात करेंगे, कश्मीर आके कैसा लगा? बहुत सुंदर है और जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा ही सुंदर है। कब से प्लान था कश्मीर आने का? मैं चाहती थी कि जब शादी हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले कश्मीर ही आऊँ, तो अभी 1 वीक ही हुआ है हम लोग कश्मीर में। बहुत बहुत मुबारक आपको, शादी मुबारक। थैंक यू सर जेब भर के पैसा खर्चा करना है ना? ओके, ये बताइए शादी को 1 वीक हो गया, आपको कश्मीर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने? अभी तो स्टार्ट ही किया है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम यहीं आए हैं मुगल गार्डन, इसके बाद डल लेक जाएंगे, बाकी और भी चीज़ें घूमना है। बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी तश दौरस पे तमो पहलगाम हमल मजम्मत करान वोनमुत जे हमला आवरन हुंद मनसूब यी खाकस मज रलावना। तिमो वोन जे हमला आवरन हुंद मकसद जे सयाह गसन कशीर ताहम यी हमला आवरन हुंद यह मनसूब नाकाम बनाना। तिमो वोन जे तमाम सयाहन पज कशीर हुंद सैल कर दुश्मनन हुंद मनसूब नाकाम बनावन। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फायज से तिमो खास कतबात करमज। वादिय कश्मीर में फिल्मों का सफ़र अगर हम देखें तो पिछले 70 की दहाई से है और तकरीबन ये सफ़र लगातार जारी है। इस बीच कई खूबसूरत यादें हैं, कई खूबसूरत पल है जो आज भी हम फिल्मों में देखते हैं, जिसमें काबिल तारीफ़ यहाँ की मेहमान नवाजी है और साथ ही साथ यहाँ का प्यार। हमारे साथ रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर अतुल कुलकर्णी जी है, आपका वेलकम कश्मीर। थैंक यू इरफान। अतुल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, नो डाउट अबाउट इट, कि लॉन्ग करियर इन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी ज़ुबान को लेकर, मराठी, हिंदी, कन्नड़ या आज तक जो आपने फिल्में बनाई है, वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल रंग दे बसंती, हे राम, या अगर मैं देखूं तो कई सारी फिल्में। कश्मीर के साथ साथ आपका क्या कहना है? नहीं, फिल्मों की तो बात होती रहेगी सर, फ़िलहाल कश्मीर में है और ये जो वक्त है वो कश्मीर का वक्त है, तो इसलिए सिर्फ कश्मीर पे बात होगी। देखिए जी, 22 तारीख को हादसा हुआ वो बड़ा दर्दनाक था, हम सब लोगों को, पूरे देश को बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। जब ऐसा कुछ होता है तो मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कुछ यहाँ वहाँ कर देते हैं,
दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ एक जिसको हम एक्शन कहते हैं ना, कि जिसको मैं खुद क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था। और साथ साथ पढ़ रहा था कि तकरीबन 90% बुकिंग्स यहाँ की कैंसिल हो चुकी हैं, ये भी मैंने पढ़ा। और दूसरी तरफ मैं सोच रहा था कि ये जो दहशतवादी हैं वो क्या मैसेज देना चाहते थे, पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को। वो ये मैसेज देना चाहते थे कि आप कश्मीर मत आइए, है ना। तो मुझे लगा कि क्यों भाई, हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर हम नहीं आएंगे तो मुझे लगा कि उनकी तो जीत हो जाएगी ना, वो तो जीत जाएंगे। वो जो करवाना चाहते हैं हमसे वो हम अगर करें तो फिर क्या मतलब हुआ। तो ये सब जब दिमाग में आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं मुंबई में रहकर नहीं कह सकता, मुझे इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, वादियों में, मुझे कश्मीर में आना पड़ेगा। और यहाँ आके ये चीज़ सारे लोगों को बतानी पड़ेगी कि भैया अगर आपने बुकिंग्स कैंसिल की हैं तो फिर से बुकिंग्स कीजिएगा, यहाँ आइएगा, यहाँ बहुत सेफ़ है। देखिए, क्योंकि जो भी शासन या प्रशासन ने करना है वो बखूबी वो कर रहे हैं। मैं अभी पहलगाम में था कल से, बिल्कुल सुरक्षित हैं वहाँ पे। जितने भी 10% टूरिस्ट आए हैं वो घूम रहे हैं सब जगह। जो कुछ भी जहाँ सेंसिटिव है वहाँ पे उन्होंने मना किया, लेकिन वो कुछ ही जगह हैं, बाकी सब जगह तो घूम रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं। तो मुझे ये संदेश यहाँ बैठकर लोगों तक पहुँचाना है कि आप कश्मीर आइए, और अभी कश्मीर आना ज़रूरी है। अगर हमें देश के लिए, कश्मीर के लिए कुछ करना है तो वक्त ये है, अभी का वक्त है। देखा जाए तो फिल्में लगातार शूट हो रही थी कश्मीर में, एक दोबारा से एक रिवीजन देखने को मिला। अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि हमें एक मैसेज देनी है, क्या मैसेज रहेगी ख़ास तौर पर उन बॉलीवुड पर्सनालिटीज़ के लिए जिनके एक बड़े लार्ज नंबर पर प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि देखा जाए तो सुनने में आ रहा था कि कई सारी फिल्में शूट होने जा रही है कश्मीर। देखिए, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हर कोई, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हर किसी के दिल में कश्मीर है। तो जाहिर है कि हर कोई अपने अपने तरीके से ज़रूर यहाँ पे आएगा, और जो भी वो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, गवर्नमेंट है, उनको कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लेने होंगे जिस तरीके से एक संदेश बाहर जा रहा है? देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों का, मैं सिर्फ मोहब्बत का एक्सपर्ट हूँ मैं कहानियाँ बता। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नवगाम बंडपोरिस मज आवाज टेक्वंडो चैंपियनशिप संज करने अत तलब इलमन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलमों तरफो बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आव तो तमो ये इकदाम तुलनस पे इंतजामी शुक्रिया अदा कर्मुत। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफो वन आमुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीजन हुंद मकसद समाज मनशियात निश दूर थावन। मिनट्स का जो आज इवेंट हुआ था नवगाम हायर सेकेंडरी में टाइकांडो का, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो स्कूली बहुत सारे स्कूली बच्चों ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया। इस चीज़ को हम इस तरह से देखते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। हमारे बच्चे जो है वो स्कूल्स में या बाकी जगहों पे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर या यहाँ तहसील के अंदर, ताकि बच्चे जो है वो ड्रग्स से दूर रहे, बाकी चीज़ों से दूर रहे, या जो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, टाइमली प्रेशर जो होता है स्टडीज़ का, बाकी चीज़ों का, उससे वो दूर रहे। और ऐसे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए जो है हम अपने यहाँ की सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स को जो है बरकरार रखा जाए, ताकि जो इनहेरिट टैलेंट जो बच्चों के अंदर है उसको जो है आगे जो है निखारने की ज़रूरत है और उसको बरोए। सिविल सोसाइटी सोपोर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुत सोपोर कस्बे तमीर और तरक्की लिहाज नजरअंदाज करने तमो हुकूमत पे जोर दिमुत सोपोर कस्बस कुन गई खास तवज्जो युन दिन युथ सोपर तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी। सिविल सोसाइटी मेम्बरों खुशी बावन सिविल सोसाइटी सोपर वाहिद रजिस्टर्ड बॉडी युस लुकन हज सही तर्जमानी करान। जिसमें सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब इस पश मंजर में आपका जो सवाल उभरता है, जो आप नहीं, हजारों मेरे चाहने वाले, मेरे पढ़ने वाले, मेरे लोग अब तक एक सवाल मुझसे करते रहे हैं कि रहील साहब, एक आप फोरम पर थे, आपने 8 बरस 10 बरस इस फोरम पर काम किया, सैकड़ों मस्जिदों में जाकर ड्रग्स के खिलाफ, दूसरी बिदात के खिलाफ आप खिताबात करते रहे, वो उसी फोरम से था।
اور پھر ہائر سیکنڈریز میں, کالجز میں, سکولوں میں اتنا سارا جو ہم نے کیا, اور آپ بیک وقت اس کو چھوڑ کر 2-3 آدمی کے سپرد کر کے آئے. آج بھی بیگی باغ کولگامس مز آز منریگا جاب کارڈ والو لکو طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل لوگ سخت ناربازی کران. احتجاج میں شامل لکو طرف ون آمت پتمہ کہیا کال پہ تمن مزور پونس واگزار کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاج میں شامل لکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت امہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن تمن بت ین ول مشکل دور کرنے ین تو تہند پونس واگزار کرنے ین. آپ کا شکریہ, آپ یہاں پہ آئے. جہاں تک ویج پیمنٹس کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے اندر یہ پروسیس چلے گا. اور پہلے تو پینڈنسی فاروق احمد بس روزان ددرکوٹ بلاک پیون بی باغ اس گزارش یہ 2023 میٹیریل تہ بند 2024 میٹیریل تہ بند, مگر رات بچہ سکولن مز تم تہ نبر کڑنے کیونکہ اچھا ریاض احمد شیخ ساری یہ جمع گمت امہ مقصد خاطر اس زن سون یہ بلاک بی باغ یت مز ساری بے روزگار نوجوان یمو زن 2-5 ورین اندر یہ کر یہ نریگا کم ات مز سن یہ مسئلہ اس مٹیریل پیمنٹ سن سو ون تہ واگزار گھان کی قرض بینکن ہند زن گرن اندر سن بچہ تم سکول گھان آز تمن خاطر فیس تہ ہکان آز برت کی لیبر. تو ناظرین کوشر خبر نامہ یتن سین خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ.